Good evening, friends. In our animal physiology lecture series, today we will discuss few important points related to PNS and action potential generation. This is the last lecture related to nervous system. It means today we will complete nervous system, first topic of animal physiology. So let's start. Yes. Before we initiate our lecture, it's humble request. If you find this valuable, then you definitely like our lecture and subscribe our channel and try to answer our questions. Let's start. In first lecture, in brief outline related to nervous system, I discussed that nervous system basically classify in two groups, CNS and SNS. Sorry, PNS. CNS means central nervous system. PNS means peripheral nervous system. In CNS, we include brain and spinal cord. All we discussed in our previous lecture. In PNS, we include ANS and SNS. SNS means somatic nervous system and ANS means autonomous nervous system. Today we will discuss autonomous nervous system. Autonomous nervous system is very complicated and it is too large, but our exam perspectives only few points are very important. These factual points you always remember and you can solve any question related to autonomous nervous system easily, very easily. So which points you must remember related to autonomous nervous system? First point is two types of ganglia present in autonomous nervous system. In last lecture I asked what is the difference between ganglia and nuclei, and in first lecture I told ganglia is the group of cytone present in PNS and nuclei is the group of cytone present in CNS. Okay, so two types of neuron present in ANS. First neuron is preganglionic neurons and सेकेंड टाइप इज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, यानी कि गैंग्लिया से पहले जो न्यूरॉन है वो प्री गैंग्लियोनिक है, गैंग्लिया के बाद है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक। इसमें एक डिफरेंस आपको याद रखना है, पोस्ट गैंग्लियोनिक हैं वो नॉन माइलिनेटेड हैं। कैसे हैं? नॉन माइलिनेटेड, यानी कि उनके चारों तरफ माइलिनेटेड की कवर शीट एब्सेंट है। ठीक है, आई होप बोथ पॉइंट यू विल रिमेंबर। एंड तो प्री गैंग्लियोनिक क्या है? माइलिनेटेड, और पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या है? नॉन माइलिनेटेड है। आई already discussed what is the ganglia. Okay, two types of autonomous nervous system, one is sympathetic and another is parasympathetic, and it is very big. If you discuss, if you read in any book, so much further points, it's happen, it's not happen, what happen, not happen, so much, so it's too much bulky. But in two single points you will solve any question related to ANS. First type of ANS is the sympathetic and second type of ANS is the parasympathetic. Sympathetics के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मेमोराइज रखना है कि sympathetic nervous system related to or activate during the energy consumption process. Energy consumption process or protection of our body process from adverse condition. यानी कि मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो दुख का साथी कौन है? सिंपैथेटिक है। किसी के साथ यदि आप सिंपैथी शो करते हो, कब शो करते हो? जब दुख होता है तभी तो करते हो। ऐसा होता है कि सुखी में जाकर सिंपैथी किया, अरे यार तू सुखी है तो मैं तेरे बहुत सिंपैथी। तो दुख का साथी कौन है? सिंपैथेटिक। अब इसके अंदर दुख के अंदर इंसान की एनर्जी क्या है? ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? या तो एडवर्स कंडीशन हो या ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही हो, तब बॉडी को प्रोटेक्ट करने। अब इसके अंदर बेसिक पॉइंट्स आप इजीली सोल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। जैसे कि मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आपको भूख, कुछ लोगों को भूख लगना कम हो जाता है। अब भूख लगना कम क्यों होता है? क्योंकि पेट के अंदर, स्टमक के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होगी तो फूड मूवमेंट कम होगा, फूड मूवमेंट कम होगा, इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस का मूवमेंट भी कम होगा। तो इससे क्या होगा कि जो
भूख है या हंगर है वो क्या होती, कम लगती। ठीक है, इसके अलावा स्वीटनिंग होगी। जब कोई खतरा आता है तो बताओ हार्ट रेट कम होती है बढ़ती है, ओबियसली बात कॉमन सेंस, हार्ट रेट बढ़ती है तो सिंपैथेटिक में हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ेगी। तो दीज पॉइंट्स आर इजीली यू कैन मूव। इसके अलावा जब मान लो कोई खतरा आता है तो तुम्हारा मुंह सूखता है यानी ड्राइनेस आती है माउथ, या फिर माउथ के अंदर लार का सलाइवा सेक्रेशन बढ़ जाता है, ओबियसली बात है कि मुंह सूख गया, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे, तो ड्राइनेस किसकी वजह से, सिंपैथी। तो दीज पॉइंट एक गोल्डन पॉइंट कि एनर्जी कंजप्शन या दुख के समय कौन काम करता है, सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक कब काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर मैं कहूँ इन लेमैन लैंग्वेज खुशी या सुख का साथी है कौन, पैरासिम्पैथेटिक। यानी कि जब बहुत ही आप फेवरेबल एनवायरनमेंट में हो, बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन में हो, तो वहाँ आपकी बॉडी पर कौन से नर्वस सिस्टम के द्वारा इन्वोलेंट्री एक्शन कंट्रोल होती है, पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा। ठीक है, या फिर जो एडवर्स कंडीशन है वो ठीक कर दी सिंपैथेटिक ने, उसके बाद रेस्टोरेशन का काम किसके द्वारा किया जाता है, पैरासिम्पैथेटिक। तो आई होप दीज फर्दर पॉइंट्स यू विल रिमेंबर एंड आई डेफिनेटली अश्योर यू यू कैन सोल्व एनी क्वेश्चन। देखो आप अगर पूछे कि भाई अगर मान लो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है तो बताओ उसमें बॉडी की जो हार्ट रेट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है खुशी में तुम्हारा दिल ज़्यादा धक धक करता है, दुख में, ऑब्वियसली बात है दिल दुख में ज़्यादा करता है, तो हार्ट रेट क्या होगी, नॉर्मल होगी या एज कम्पेयर टू कम होगी, किसके थ्रू तुलना में, सिंपैथेटिक की तुलना में। ठीक है, तो दिस टाइप क्वेश्चन यू कैन सोल्व इजीली। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिकली दिस पॉइंट या दिस टॉपिक in discuss in initiation of any lecture, या it's I say in simple manner कि nerve impulse topic is the inaugurative topic of nervous system, but I discussed it in last because it's very complicated topic, so few points you will remember, बाकी याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो not too much problems। यस, नर्व इम्पल्स के बारे में बात करें तो नर्व इम्पल्स है कि कोई भी ऐसा स्टिमुलाई जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करे या उसको इनिबिट करे, दिस इज द नर्व इम्पल्स। जैसे कि थ्रोन पिंच हुआ तो दिस इज ए नर्व इम्पल्स। अब ये सारे एक्टिविटी कहाँ पर होती है, जैसे थ्रोन पिंच हुआ हमारे स्किन में और वो हमें पेन का सेंसेशन होता है, अब वो पेन का सेंसेशन है तो ऐसा तो है नहीं कोई कनेक्शन है कि, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, वही प्रोसेस हम इस 2 स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो मैं ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस कि जो एक्सोन है, ये मान लो कोई न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये जो पार्ट है वो क्या है, उसका एक्सोन है, ये पार्ट क्या है उसका साइटोन है, और ये इधर उसके जो ब्रेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो उसके क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, और ये जो इसका एक्सोन का एंडिंग है वो क्या है उसकी टिलोडेंड्री। तो एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं, न्यूरोलेमा या एक्सोलेमा, और एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है उसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। तो जहाँ पर मैं एक्सोप्लाज्म बोलूँगा इसका मतलब है कि वो एक्सोन का साइटोप्लाज्म है, जहाँ मैं एक्सोलेमा बोलूँगा इसका मतलब वो या न्यूरोलेमा बोलूँगा इसका मतलब वो क्या है, एक्सोन या न्यूरॉन की क्या है, मेम्ब्रेन है। ओके, क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन होता है स्टिमुलस का वो पोलर नेचर होती है किसकी, न्यूरोलेमा की, पोलर नेचर के कारण। पोलर नेचर का मतलब है कि एक साइड में पॉजिटिव चार्ज रहेगा और अनदर साइड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा होता है तो ऑब्वियसली या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, और मेम्ब्रेन है तो न्यूरोलेमा मेम्ब्रेन है तो फिर कैसे होगी, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो आपको न्यूरोलेमा के बारे में याद रखना है कि पोलर है, सिलेक्टिव परमेबल है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 3 स्टेज है। पहली स्टेज है जैसे आप नॉर्मल अवस्था में हैं, कोई कांटा वाटा चबा हुआ नहीं है, रेस्टिंग फेज में। रेस्टिंग फेज में बेसिकली आपकी जो न्यूरोलेमा है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कि रेस्टिंग फेज के अंदर कोई भी न्यूरोलेमा है वो पोलराइज स्टेज में होती है, यानी कि ध्रुवीय स्टेज में होती है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्टिंग फेज के अंदर न्यूरोलेमा की जो इनर साइड है यानी कि एक्सोप्लाज्म की टुवार्ड्स वाली साइड है उधर होता है नेगेटिव, और जो आउटर साइड है यानी कि आउटर साइटोप्लाज्म है उसकी तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि ये साइटोप्लाज्म और ये क्या है, एक्सोप्लाज्म। तो एक्सोप्लाज्म की तरफ क्या है, नेगेटिव। कौन सी स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में। और आउटर साइड मतलब जो आउटर साइटोप्लाज्म है उधर क्या है, पॉजिटिव। ये मेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अब इस अवस्था के अंदर जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो इसका मतलब है पोटेंशियल भी होगा। और कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं हम? रेस्टिंग स्टेज की। और किसकी रेस्टिंग स्टेज डिस्कस कर रहे हैं? मेम्ब्रेन की। तो इस स्टेज के अंदर जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको बोलते हैं RMP या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये RMP का मान कई बार पूछ लेता है, तो कितना है? -70 मिली वोल्ट, -70 मिली वोल्ट, 60 से 85 की रेंज में होता है, बट एवरेज कितना? -70 मिली वोल्ट। क्लियर? ये क्यों जनरेट होता है? तो बाय एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट की वजह से ये जनरेट होता है। अब इसके अंदर देखो, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में 2-3 पॉइंट्स आपको पता होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP कंज्यूम होते हैं, पैसिव में ATP कंज्यूम नहीं होते। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर पंप कार्य करता है। कौन सा पंप कार्य करता है? सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। कौन सा पंप? सोडियम पोटेशियम पंप। और सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा रेस्टिंग फेज में जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो 3 सोडियम, कितने सोडियम? 3 सोडियम एक्सोप्लाज्म से चले जाते किधर? मेम्ब्रेन की तरफ। एक्सोप्लाज्म से चले जाते किधर? मेम्ब्रेन के थ्रू आउटर साइटोप्लाज्म। किधर चले जाते हैं? आउटर साइटोप्लाज्म। और 2 पोटेशियम आउटर साइटोप्लाज्म से किधर आते हैं? एक्सोप्लाज्म। किधर आते हैं? एक्सोप्लाज्म। मैंने पहले बोला था कि ये एक्सोन है, इसका जो साइटोप्लाज्म वो एक्सोप्लाज्म, और इधर जो साइटोप्लाज्म है बाहर की तरफ वो क्या है? आउटर साइटोप्लाज्म। तो रेस्टिंग फेज के अंदर 3 Na किधर चले गए? आउटर साइटोप्लाज्म में, और 2 K किधर आ गए? एक्सोप्लाज्म। तो बताओ ज़्यादा पॉजिटिव बाहर गए या अंदर आए? ज़्यादा पॉजिटिव बाहर गए। ज़्यादा पॉजिटिव बाहर गए तो अंदर की साइड में क्या जाएगा? नेगेटिव। तो इसीलिए रेस्टिंग फेज के अंदर क्या होता है? इनर साइड में नेगेटिव होता है मेम्ब्रेन के, और आउटर साइड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस अवस्था के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमिएबल होती है। किसके लिए? पोटेशियम के लिए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, पोटेशियम के लिए ज़्यादा परमिएबल होती है। लेकिन फिर आपके दिमाग में आना चाहिए, सर ज़्यादा परमिएबल पोटेशियम के लिए होती है तो फिर तो पोटेशियम ज़्यादा आना चाहिए और फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है तो मैंने पहले बता दिया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट में पोटेशियम अंदर ज़्यादा आता है सोडियम की तुलना में। क्लियर? क्लियर? इसके अलावा क्लोरीन कई बार पूछ लिया जाता है, क्लोरीन की क्या सिचुएशन होती है? तो क्लोरीन आयन है वो इनर साइड में क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर तो मैंने क्या बताया था कि भाई सोडियम क्या होता है? बाहर जाता है, और पोटेशियम क्या आता है? अंदर आता है। किस में आता है? एक्सोप्लाज्म। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जस्ट इसका वाइस वर्सा होता है, यानी कि सोडियम क्या होगा? अंदर आएगा, और पोटेशियम क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा। क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा पोटेशियम। क्लियर? दूसरी जो फेज होती है वो एक्साइटिंग फेज होती है। एक्साइटिंग फेज में जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट होता है? एक्शन पोटेंशियल। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ एनी फॉर एनी नर्व इम्पल्स। एक्शन पोटेंशियल किसकी वजह से जनरेट होता है, किसके द्वारा जनरेट होता है? तो सोडियम आयन के द्वारा जनरेट होता है। बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूरोलेमा है या फिर एक्सोलेमा है उस पर एक तो सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। इसके अलावा उस पर वोल्टेज गेटेड चैनल भी होते हैं। क्या होते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल भी होते हैं। वो वोल्टेज गेटेड चैनल नॉर्मल स्टेज में या रेस्टिंग फेज में क्लोज होते हैं। किसके द्वारा? कैल्शियम के द्वारा। किसके द्वारा क्लोज होते हैं? कैल्शियम के द्वारा। लेकिन जब स्टिमुलेटरी फेज आती है, यानी कोई भी स्टिमुलस मिलता है बाहर से, तो जो एक्सोलेमा है वो मोर परमिएबल हो जाती है एक्साइटिंग स्टेज में। किसके लिए? सोडियम के लिए। रेस्टिंग स्टेज में किसके लिए ज़्यादा परमिएबल थी? पोटेशियम के लिए। ये याद रखना, रेस्टिंग फेज में किसके लिए ज़्यादा परमिएबल? पोटेशियम के लिए। एक्साइटिंग फेज में किसके लिए ज़्यादा परमिएबल? सोडियम के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो एक्साइटिंग फेज में ओपन हो जाते हैं, और उन ओपन होते ही सोडियम क्या करता है? आउटर जो साइटोप्लाज्म है उससे किधर जाता है? एक्सोप्लाज्म। और ज़्यादा सोडियम एक्सोप्लाज्म में जाता है, जिससे जो इनर साइड में रेस्टिंग फेज के अंदर कैसा चार्ज था एक्सोलेमा के नेगेटिव, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? पॉजिटिव में। और धीरे धीरे फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि नेगेटिव पॉजिटिव बराबर हो जाते हैं और जीरो हो जाते हैं। ठीक है, उस स्टिमुलस को बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी कि जिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डीपोलराइज हो जाती है, और फिर सडनली मेम्ब्रेन क्या होती है?
रीपोलराइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। क्या होती है? रीपोलराइजेशन की प्रोसेस इनिशिएट होती है, और इस प्रोसेस के दौरान पोटेंशियल जनरेट होता है। उस पोटेंशियल को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? +30 मिली वोल्ट। तो ये ध्यान रखना, RMP की वैल्यू कितनी थी? -65 या -70 वोल्ट, और एक्शन पोटेंशियल की कितनी है? +30 मिली वोल्ट। ठीक है। रेस्टिंग फेज के अंदर क्या था? इनर सरफेस पर क्या था? नेगेटिव। वह एक्साइटिंग फेज में उसका वाइस वर्सा होगा पॉजिटिव। तो आई होप ये क्लियर। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है नर्व इम्पल्स की, वो होती है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन की स्टेज में क्या होता है कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे जो कि ओपन हो गए थे एक्साइटिंग फेज में, वो विद इन सेकेंड में क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, यानी कि उन पर क्या आ जाता है? कैल्शियम आ जाता है। ठीक है। और वोल्टेज गेटेड चैनल में भी कौन से चैनल क्लोज हो जाते हैं? सोडियम वाले चैनल क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। और पोटेशियम वाले चैनल क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। और फिर से वापस से इससे क्या जनरेट होता है? इनर साइड में मेम्ब्रेन में क्या आ जाता है? नेगेटिव, और आउट साइड में क्या आ जाता है? पॉजिटिव, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियम आ जाता है। ठीक है। अब हमारे दो तरह के न्यूरॉन हमने डिस्कस किए थे, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड के अंदर तो जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसफर है वो कंप्लीटली होता है, यानी कि एक बल्कि पूरी मेम्ब्रेन के अंदर होता है। माइलिनेटेड होता है उसके अंदर क्या होता है? माइलिन फाइबर ऐसे होते हैं, यहाँ बन गया माइलिन फाइबर की शीट, उसके बाद आगे जाके बनेगी। तो ये जो गैप बना है, इस गैप को, यानी कि दो माइलिन फाइबर की शीट के बीच जो गैप है जहाँ पर कि कोई माइलिन कवरिंग नहीं है, या कह सकते हैं कि नॉन माइलिनेटेड एरिया है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवियर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनिवियर। और इस नोड ऑफ रेनिवियर के माध्यम से ही ट्रांसमिशन होता है माइलिनेटेड, यानी कि यहाँ पर जंप मारा फिर अगले नोड ऑफ रेनिवियर पर जंप मारेगा। तो इस तरह का जो ट्रांसमिशन होता है स्टिमुलाई का, उसको बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। कौन सा कंडक्शन बोलते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन। इसमें क्या है? एनर्जी लेस कंज्यूम होती है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर में साल्टेटरी कंडक्शन होता है या जंपिंग कंडक्शन होता है एक नोड ऑफ रेनिवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनिवियर पर, और इसमें लेस एनर्जी कंज्यूम होती है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग है, सो नो क्वेश्चन टुडे। आई होप, yes, one simple question. I hope all of you complete it very honestly. And one question related to these: what is the charge on membrane या neurolemma during the resting phase and during the exciting phase? And then what is the value of the resting membrane potential and the action membrane potential? And the node of Ranvier present at myelinated nerve fiber or non-myelinated nerve fiber. I hope यू डोंट से मास्टर टू तो हानिकारक है, 18 मिनट का वीडियो होगा, बट आई से सॉरी, बट आई होप यू ऑल ऑफ यू कवर दिस। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल इवनिंग।